السلام علیکم. جیسے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں اب اوپن ڈسکشن اور آبویسلی سر ہم سے مخاطب ہوں گے، تو کسی بھی پروگرام کی طرح میں ندیم بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرأت سے پروگرام کو شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام علیکم. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کا یہ پروگرام جو تقریباً 10 دن 12 دن پہلے شروع ہوا تھا، نو یور فاؤنڈر، اور اس پروگرام کم کیمپین میں کیونکہ ایشیا کپ کی وجہ سے قوم بزی بھی تھی تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کیا گیا، جو کہ ارادہ تھا ایکچوئل میں پراپر بک ریڈنگ کا، اور لائٹ ڈسکشنز کے ساتھ یہ پروگرام اپنا سفر دھیرے دھیرے طے کر رہا تھا، اور فائنلی آج سے پراپر بک ریڈنگ کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہونا ہے. تو اس سلسلے کو شروع کرنے کے لیے اور اس پر ایک اوور ویو ڈسکشن دینے کے لیے ہم نے اپنے سرپرست اپنے بڑوں کو آج یہاں پر زحمت دی ہے اور سر نے زحمت اٹھائی بھی ہے. تو سب سے پہلے میں بچن صاحب، جن کو آپ لوگ پہلے بھی روبرو ہو چکے ہیں، تو بچن صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ سر آج کا جو موضوع ہے، اور کیونکہ پچھلا جو پروگرام ہم لوگوں نے کیا تھا جس میں شاہد صاحب اور بچن صاحب موجود تھے، تو وہ پروگرام تھا سر سید اور علی گڑھ موومنٹ. آج وہ لارجر فریم کا پروگرام تھا. آج جو ہے وہ سر سید اور 1857 پر ہم لوگوں نے فوکس کیا ہے، کیونکہ پورا سلسلہ جو آج موجودہ وقت میں بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، آج بھی ایک کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، میرے خیال سے زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا. تو ملک کے جو بھی موجودہ حالات ہیں یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے پس منظر میں جب ہم جائیں گے اور جب ڈائگنوسس کریں گے یہ جو ایک کرائسس موجودہ حالات میں ہمارے سامنے ہے، تو ڈائگنوسس میں جب ہم پیچھے جائیں گے تو پیچھے جاتے جاتے لاسٹ جو ہمیں انسیڈنٹ نظر آتا ہے کہ جہاں سے یہ پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ یقیناً 1857 کا وہ غدر ہے. تو وہیں سے چیزیں شروع ہوئی ہیں. اس کے پہلے کے حالات کچھ اور تھے، اس کے بعد کے حالات کچھ اور ہیں، اور جو دھیرے دھیرے اپنا الگ الگ فیسز کو طے کرتے ہوئے فائنلی آج 2022 میں ہم موجودہ حالات اس ملک کے دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے آج کا جو فوکس ہے وہ سر سید اور 1857 پر یہ فوکس ہے. تو میں اسی کے ساتھ بچن سر کو دعوت دوں گا کہ سر اس پر ایک اوور ویو دیتے ہوئے اور اس کارروائی کو آگے بڑھائیں، اس پروگرام کا شروع کریں. السلام علیکم. کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ
सर सैयद और अलीगढ़ मूवमेंट पर जिन लोगों ने काम किया है, किताबें लिखी हैं, उनके खिदमात को कंपाइल किया है, उनमें सबसे बड़े नामों में से हैं प्रोफेसर डॉक्टर राहत अबरार साहब। यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में खिदमात को अंजाम दिया। वो तो और बहुत सारे लोग भी हैं, नौकरी पाते हैं और रिटायर हो जाते हैं, लेकिन अपनी नौकरी के दौरान भी, उसके बाद भी और आज भी सर सैयद मिशन की जो रिकॉर्ड तैयार करना, बुक्स की फॉर्म में, मैनुअल्स की फॉर्म में और कई तरह से सामने आकर बताने की फॉर्म में, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है राज भाई का। अभी आपको थोड़ा सा जो भी टॉपिक है लिमिटेड टाइम में उस पर कुछ अंदाज़ा होगा। पिछली मरतबा डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब आए थे, जो लोग थे उनको अंदाज़ा हुआ होगा। बस हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बस एक बात पर गौर कीजिए कि जो सुना जाए या जो पढ़ा जाए, कोशिश करें सुने भी, पढ़ें भी, सर सैयद और अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में इल्म हासिल करें, लेकिन वो सिर्फ इल्म तक नहीं रहना चाहिए, उस पर अमल भी होना चाहिए, सोचना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। मिसाल के तौर पर सर सैयद छोटे थे बचपन में, उन्होंने अपने घर के खादिम उनके साथ बदतमीजी से पेश आए, शायद एक थप्पड़ मार दिया था किसी बात पर, उनकी माँ ने उनको घर से निकाल दिया था और जब तक माफ़ी नहीं मांग ली, उन्होंने माफ़ नहीं कर दिया, तब तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उससे ये सबक भी मिलता है और यहाँ का अपनी यूनिवर्सिटी का कल्चर भी रहा है कि अपनी जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है हॉल्स में, ऑफिसेज में, उनके साथ क्या रवैया रहना चाहिए। वहाँ किसी तरह की ईगो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कल्चर रहा है, जो छोटे भी हैं बेहतर है उनको मियाँ कहने का, या जो बड़े हैं उनके साथ भाई लगाने का। अब इधर कुछ दिनों में कुछ थोड़ी सी इसमें कमी आ रही है, इसको भी दूर करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक आस्पेक्ट है, इसके अलावा चाहे डिसिप्लिन का मामला हो, चाहे ड्रेस का मामला हो, और दूसरी जो कुछ खराबियाँ आ गई हैं, मिसाल के तौर पर किसी को आदत लगी सिगरेट की या गुटखे की, ये बैन थी सर सैयद के दौर में, तो इनको लग जाती है, कोई बात नहीं है फेज में, तो उसको बहुत दूर किया है और आपस में डिस्कस करके और दूसरे लोगों से, दोस्तों से, उनसे भी दूर कराने की कोशिश की है। तो मतलब ये है कि जो सुना जाए उस पर गौर भी किया जाए और उस पर फिर अमल भी होना चाहिए सोच समझ के, तभी इस एक्सरसाइज का जो असल मकसद है वो पूरा हो पाए। ये यूनिक एक्सपेरिमेंट है, यूनिक अप्रोच इस तरह की ओपन डिस्कशन की, इसको कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश कीजिए, इसका जिक्र कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और इससे मुस्तफ़। शुक्रिया बहुत बहुत। शुक्रिया सर। जैसा कि सर ने बताया डॉक्टर राहत अबरार साहब के बारे में, यकीनन राहत साहब अपने आप में एक अथॉरिटी हैं सर सैयद और अलीगढ़ मूवमेंट पर, और एक बड़ा मतलब पूरी ज़िंदगी ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ख़ासकर PROशिप में एक पब्लिक रिलेशन की जिम्मेदारियां उठाना, और यकीनन अलीगढ़ हाँ बिल्कुल एनसाइक्लोपीडिया तो है ही, उसके अलावा एक ब्रिज तमाम जो गेस्ट अलीगढ़ में आते रहे इस दौर में, और उनके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीच में एक जो मजबूत सायादार दरख्त कम ब्रिज अगर कोई है और जो रहा एक अरसे, हमने तो बचपन से जो देखा, तो वो सर डॉक्टर राहत अबरार साहब हैं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कहने की मेरे अंदर भी वसअत नहीं है। बस मैं यही कहूँगा कि सर सैयद और अलीगढ़ मूवमेंट को आज की डेट में अगर ज़िंदा लोगों में किसी को जानना हो, किसी को देखना हो, या किसी को मुलाकात करनी हो उस गुजरे हुए वक्त से, तो डॉक्टर राहत अबरार साहब एक ज़िंदा शख्सियत हैं कि जिनसे आप ये तमाम तर चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो अब आप लोग और डॉक्टर राहत अबरार साहब। सर बच्चन साहब और हमारे मिंटो साहब, मैं इसी इदारे का तालिब इल्म रहा हूँ और खुशकिस्मती मेरी ये है कि मैंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ भी यहीं से किया था।
ये सामने जो आप देख रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस, उसके ऊपर एक बिल्डिंग है, उस पर लिखा हुआ समी मंजिल। वो किसी ज़माने में पब्लिक रिलेशंस का ऑफिस हुआ करता है। और जिस जगह आप हैं स्टेचू हॉल में, यहाँ हम लोगों के स्टूडेंट बेस में एग्ज़ाम होते थे। और ये मुश्ताक मंजिल जो है, ये यहाँ का कैश सेक्शन था, और सारी रसीदें जो है यहीं करते थे, पैसा फाइनेंस ऑफिस जो है वो यही था। तो गरज ये कि हम लोगों ने बहुत 1971 में मैं यहाँ आया था एज़ गई, और 1984 में मैं यहाँ मुलाजिम हो गया। अच्छा हाँ, तो मैं यहाँ मुलाजिम हो गया, और उसके बाद एक एहसास हुआ कि हम जिस इदारे में काम करते हैं, जिस इदारे में और ख़ास तौर से पब्लिक रिलेशंस में है, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और लोगों को अपनी बात बतानी चाहिए। ये जो आज टॉपिक है सर सैयद और 1857, आपने ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हादी का नाम सुना होगा। उनको ये माना जाता है कि सर सैयद की सबसे बेहतरीन बायोग्राफी अगर किसी ने लिखी है तो वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हादी ने लिखी है। जो लोग तहक़ीक़ की दुनिया में कदम रखते हैं, वो देखते हैं, उनको पता चलता है कि ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर एक किताब है सर सैयद की 1857 के ताल्लुक़ से, उसका नाम है असबाब बगावत हिंद। वो किताब तकरीबन 200-250 से ज़्यादा छपी है, और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में उसके तर्जुमे हुए हैं, और न सिर्फ तर्जुमे हुए बल्कि उस पर रिसर्च PhD हुई है। खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी PhD हुई है। मुझको ऐसा लगता है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं अपनी बात को, कि अगर 1857 का जो सानिया था, जो हादसा था, वाक़या था, अगर वो नहीं होता तो सर सैयद भी नहीं होते। सर सैयद को मैं 1857 की प्रोडक्ट मानता हूँ, पैदावार मानता हूँ। और न सिर्फ उसकी पैदावार बल्कि ये इदारा जो है वो उसी हालात और उसके तकाजे जो थे, उसकी ज़रूरियात जो थी, उसके लिए था। सर सैयद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देते थे, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए वो कहते थे कि एजुकेशन जो है वो मीन्स है। तो सर सैयद ने पूरी जो ज़िंदगी है वो कि हम किस तरीके से सियासी बाज़ियाफ्त करें, सियासी इक़्तिदार हासिल करें, और उसके लिए उन्होंने तालीम को ज़रिया बनाया। तालीम बुनियादी ज़रिया नहीं था उनके यहाँ बुनियादी ज़रिया जो था वो सियासी हुसूल था। तो पहला काम जो उन्होंने किया, दिल्ली में बिजनौर में थे, बिजनौर से वो मुरादाबाद आए, मुरादाबाद से वो किसी तरीके से अपनी जान बचा के मेरठ में आके छुपे, और 5-6 महीने मेरठ में रहे। और उस ज़माने में कर्फ्यू पास उन्होंने मेरठ से हासिल किया, और वो दिल्ली गए। दिल्ली में दरियागंज के करीब में सराय बहराम बेग में उनकी वालदा का घर था, और उस घर के अंदर सर सैयद के सगे मामू और सगे मामूजाद भाई को कत्ल कर दिया गया था। यानी 1857 के वाक़यात को समझने के लिए तो ये चीज़ें थी। उनकी माँ जो सर सैयद की थी, जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी ने अभी हॉल बनाया, अजीज़ुन्निसा, उनको अपनी जान बचाने के लिए घोड़ों के अस्तबल में छुपना पड़ा था। उनके वालिद बुजुर्गवार जो थे अजीज़ुन्निसा के, वो मुग़ल दरबार में प्राइम मिनिस्टर थे, यानी उनकी हैसियत इतनी ज़बरदस्त थी, और उसको अपनी जान बचाने के लिए क्या जुल्म था, क्या ज़्यादती थी, क्या हालात थे, उनको छुपना पड़ा और अस्तबल में छुपना पड़ा। सर सैयद किसी तरीके से वो वहाँ जाते हैं, और जाने के बाद एक शख्स सर सैयद का और करीब तरीन दोस्त था, उसका नाम था मौलवी समीउल्लाह खान। उनका घर भी करीब में था। वो घोड़ों का उस ज़माने में रथ होते थे, वो लेके आए, और किसी तरीके से सर सैयद और उनके बच्चों को, अपनी फैमिली को वो लेके निज़ामुद्दीन गए। निज़ामुद्दीन से मेरठ ट्रेन आती थी। ये जो स्टेशन है ये उस वक्त नहीं था। तो वो जो लम्हा है, उस पैदल चलना सराय बहराम बेग से निज़ामुद्दीन तक, वो ज़िंदगी का उनके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कहा कि अगर हम अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ इसीलिए कर सकते हैं कि हम तालीम को अपना हथियार बनाएं। और वहीं से सर सैयद का जहन बदला, और सर सैयद ने पूरी कोशिश की। मुरादाबाद जब वो पहले मेरठ आए, मेरठ से फिर वो मुरादाबाद आए, तो उन्होंने पहला काम जो किया वो एक किताब लिखी, तारीख़ सरकशी बिजनौर, जो 1858 में शाये हुई थी आगरा से। वो किताब बहुत मशहूर हुई,
उस किताब को 3 लोगों ने अलग अलग तौर पर, एक पाकिस्तान में मोइन उल हक साहब हैं, उन्होंने उसको लिखा, और एक बिजनौर के एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने उस पर काम किया, जो दारुल मुसन्निफीन सच। एक और बहुत बड़े पॉलिटिकल बायोग्राफर हैं सर सैयद के, क्या नाम है बताइए साहब? हफीज़ मलिक साहब। मैं ये मानता हूँ कि 2 लोगों ने सर सैयद के पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा लिखा है। एक है हफीज़ मलिक, जो पेनिसिल्वानिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रोफेसर थे, और एक हमारे शान मोहम्मद साहब, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सर सैयद के पॉलिटिकल थॉट पर PhD की डिग्री हासिल की थी, और फिर वो यहाँ आ गए थे, यहाँ पॉलिटिकल साइंस के चेयरमैन भी रहे, विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, और सर सैयद अकेडमी के डायरेक्टर रहे। उनकी बहुत ज़्यादा किताब है, और उनका डॉक्यूमेंटेशन, यानी सर सैयद के पॉलिटिकल उसको सब। उसके बाद जब ये चीज़ें आई तो हफीज़ मलिक ने बहुत बाद में उस किताब को अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया, और दिल्ली के इदारे अदबियात ने उस तर्जुमे को शाये किया, जो अब यहाँ अवेलेबल है, मिलता है। तो ये जो तारीख़ सरकशी बिजनौर है, ये एक बुनियादी पहला काम था जो 1858 में किया। उन्होंने 1858 से 59 तक, 57 से 1857 में जो गदर हुआ 10 मई से 58 तक जो भी वाक़यात हुए, वो उसमें बड़ी तफसील के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ उसमें बयान किए। उसके बाद दूसरा मरहला आता है, उन्होंने एक किताब और लिखी। वो क्योंकि मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम जा रहा था कि बगावत उन्होंने किया, गदर उन्होंने किया है, तो उसके लिए उन्होंने एक और किताब लिखी। वो किताब इतनी मकबूल हुई कि हिंदुस्तान की तारीख में वो पहली किताब है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस पर डिबेट हुई, कि कोई किताब पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुई है। तो उस पर जब डिबेट हुई तो उस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर था, उसका नाम था सीसिल बेडन। उसने कहा कि ये एक बागी हिंदुस्तान में पैदा हो गया है, इसको फांसी दे दी जाए। लेकिन क्योंकि उसका वो जब किताब 1859 में आई, तो अब ये मसला था कि वो उर्दू में किताब है, उसको फिर वायसराय की तरफ से उसका तर्जुमा कराया गया, जिसका 90% लोगों को इल्म नहीं है। वो कलकत्ता में तर्जुमा हुआ, कलकत्ता के वायसराय का ऑफिस था, वहाँ से प्रिंट हुआ, और वो सिर्फ वायसराय के, यानी ब्रिटिश काउंसिल के लिए जो मेंबर पार्लियामेंट थे उन्हीं के लिए था, पब्लिक के लिए नहीं थी वो तर्जुमा, और वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और उसके ऊपर बहस हुई। उस बहस का नतीजा ये हुआ कि लोगों ने कहा कि सर सैयद ने जो बुनियादी सवाल उठाए वो ऐसे हैं, इस पर गौर करना चाहिए। तो पहला सवाल उनका ये था, सर सैयद का, कि एक बहुत मशहूर क्रिश्चियन है कलकत्ता में, उसने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा हुकूमत वक्त को और वहाँ के जिलाधिकारियों को और DM को, उनको उन्होंने कहा कि ये वक्त है कि इस वक्त सारे जितने लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उनको ईसाई बनाया जाए। तो सर सैयद क्योंकि सरकारी मुलाजिम थे, उनको किसी ने वो खत भेज दिया, उनके हाथ लग गया। तो सर सैयद को लगा कि उन्होंने कहा कि आज इसको जब मैं पढ़ता हूँ तो इसने मुझे बुढ़ा कर दिया, मेरे बाल सफ़ेद कर दिए, और एक बेचैनी पैदा हुई कि कल जो है ये तब्दीली इतनी बड़ी आएगी और ज़बरदस्ती जो है, जबरन जो है लोगों को ईसाई बनाया। तो वो लेटर उसको रखा। दूसरा, उन्होंने पॉलिसीज़ को, ब्रिटिश पॉलिसीज़ को बहुत खूबसूरती से क्रिटिसाइज़ किया, और क्रिटिसाइज़ के बाद जब वो किताब सामने आई तो उसका फिर तर्जुमा कलकत्ता में हो गया। तीसरा फिर तर्जुमा जो है, एक दूसरा तर्जुमा अंग्रेज़ी वाला जो है, वो एक बहुत मशहूर आदमी था कर्नल GFI ग्राम, जो सर सैयद का पहला इंग्लिश का बायोग्राफर भी है, और सर सैयद का सबसे ज़्यादा अगर कोई दस्तराज था जो 24 घंटे उनके साथ रहता था, हर वक्त उनके साथ रहता था, वो उसका नाम ग्राम है, कर्नल GFI ग्राम ने और ऑकलैंड कॉल्विन ने, दोनों ने मिलकर उस किताब का, जिसको बाद में असबाब बगावत हिंद कहा गया, उसका तर्जुमा किया। और 1873 में वो किताब मेडिकल प्रेस बनारस से शाये हुई। तो उससे फिर एक और वो हुआ। इसी बीच में सर सैयद को फिर एक ख्याल पैदा हुआ कि क्योंकि 1857 के हालात
अजीब व गरीब थे, तो उन्होंने एक किताब और लिखी, रिसाला था वो भी, उसका नाम है लॉयल माउंटेन्स ऑफ इंडिया। तो उस लॉयल माउंटेन्स ऑफ इंडिया में एक तरफ उर्दू में है, दूसरी तरफ अंग्रेजी में है। यानी उर्दू में मुसलमानों से या उर्दू वालों से अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं और अंग्रेजी के ज़रिए वो अंग्रेज़ों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हुकूमत वक्त से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उसके 3 शुमारे शाये हुए, हर 6-6 महीने बाद वो हुए हैं और वो मेरठ से शाये हुए हैं। तो इन तीनों किताबों को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, सामने नहीं रखेंगे, तो उस वक्त तक आप सर सैयद 1857 और सर सैयद का सियासी मिजाज, सर सैयद का सियासी शऊर, सर सैयद की सियासी बसीरत तक आप नहीं पहुँच सकते। मैं ये भी मानता हूँ, आप लोग सर सैयद को सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बानी मानते हैं, यही मानते हैं ना। मेरा अपना ख्याल ये है कि 1857 में अगर सर सैयद नहीं होते तो हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो मुस्लिम स्पेन बन जाता। सर सैयद का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मुस्लिम स्पेन बनने से इस मुल्क को रोका, और उसके लिए उन्होंने जो तरीक़े अपनाए, वो जो किताबें लिखी, वो ये किताबें इसकी गवाही देती है, शहादत देती है कि उन्होंने वो सब चीज़ों को लिखा। और मुस्लिम स्पेन बनने से जो अंग्रेज़ों का जुल्म था, जाति थी, हर जगह मुसलमानों को मारा जा रहा था, पेड़ों पर लटकाया जा रहा था, उलमाओं को शहीद किया जा रहा था, अब उसमें से कई बातें निकल के आती हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में एक मस्जिद थी, जामा मस्जिद के बराबर में है, अकबरी मस्जिद। वहाँ बड़ी तादाद में उलमा थे, वो सब एक जगह जमा थे। अंग्रेज़ों ने उसको बम्बार्ड कर दिया और शहीद कर दिया। तो सर सैयद के जो सबसे करीबी दोस्त थे, जो आसार सनादीद में सर सैयद के साथ चीका बांध कर बड़ी बड़ी कुतुब मीनार जैसी इमारतों पर वो वहाँ रहते थे और उसको देखते थे, हैं नोट करते थे, उनको भी शहीद कर दिया उसी उसमें। और वो मस्जिद को क्योंकि शहीद किया था, तो उस मस्जिद के मलबे से, क्योंकि सर सैयद उसी इलाके के रहने वाले थे, तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ उस मस्जिद में कुरान पाक की एक आयत सूरह अल-फज्र जो है वो लिखी हुई थी। वो उस आदमी ने खत्ताती की थी जिसने ताजमहल की खत्ताती की थी, और उसी दौर की खत्ताती है। तो सर सैयद यानी उनको तहजीब और सकाफत और अपने उससे क्या कितनी दिलचस्पी थी, उन्होंने उसको 102 रुपये में खरीद लिया और कहा कि जब मेरी MA कॉलेज की मस्जिद तैयार होगी तो मैं उसको लगाऊंगा। आप इस मस्जिद के अंदर जाइए, बीच में जो आपने देखा है सफ़ेद उससे जो लिखा हुआ है वाइट मार्बल से सूरह अल-फज्र, वो उस आदमी का लिखा हुआ है जिसने ताजमहल की खत्ताती की। जबकि कितने साल का फ़र्क है, 400-450 साल का। मैंने अभी ऑकलैंड कॉल्विन का जिक्र किया। ऑकलैंड कॉल्विन जो है गवर्नर बनकर, वो सर सैयद का दोस्त था, वो गवर्नर बन के यहाँ आता है और आने के बाद जलसा करता है, और ये दीवार पर लिखा हुआ है, देखिए गौर से, सर ऑकलैंड कॉल्विन एडवाइस टू इंडियन मुस्लिम। तो हम लोगों ने, सर सैयद ने एक एक पत्थर तक का इस्तेमाल जो है वो अपनी तारीख को उसने रकम किया है। थोड़ा मॉरिसन का मॉरल का लेक्चर है, वो उन्होंने उसको लिखा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर सर सैयद नहीं होते तो ये मुल्क स्पेन बन चुका होगा। सर सैयद ने 2-3 काम किए। ऐसे ही दिल्ली में एक दिल्ली कॉलेज है, अभी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह। उसके मुताबिक एक बड़े स्कॉलर ने, अनवर सदीद नाम है, उन्होंने लिखा है कि साहब सर सैयद ने जब वो कॉलेज को, वहाँ भी जो उसका अंग्रेज प्रिंसिपल था उसको एक मुसलमान ने मार दिया था। उसके जवाब में उन्होंने वो पूरा कॉलेज जो है वो तहस नहस कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसका वजूद बिठा दिया। तो अब जब वजूद ख़त्म कर दिया तो उसमें मौलाना ममलूक अली जो कासिम नानोतवी के उस्ताद थे, दारुल उलूम देवबंद के जो बानी हैं उसके उस्ताद, और सर सैयद भी बड़ा एहतराम करते थे। लोग कहते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी और सर सैयद जो है वो एक हम जमात थे, और कासिम नानोतवी के उसके मौलाना के शागिर्द थे। मैं ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कासिम नानोतवी तो बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। तो लेकिन कासिम नानोतवी से सर सैयद के बराह रास्त मामला थे, ताल्लुकात थे।
सर सैयद एक चीज़ और चाहते थे, ये हमारे बच्चन साहब स्कूलों को देखते हैं तो मैं बता दूँ, उन्होंने जो 1873 में 8 फरवरी 1873 में पहला जलसा जो है इस कॉलेज का बनाने का जो बनारस में हुआ है, उसमें बहुत वाज़ह तौर पर कहा है कि हम कोई मदरसा नहीं बना रहे, हम कोई कॉलेज नहीं बना रहे, हमारा इरादा यूनिवर्सिटी बनाने का है। पहला 1873 का जो पहला जलसा है उसमें यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो गई है, लेकिन उस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने का कोई कंसेप्ट था नहीं, लिहाजा यूनिवर्सिटी बन नहीं सकती थी। 4 ही हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी थी, सब सरकारी थी। लेकिन ख्वाब जो है उस वक्त जो पहले दिन देखा गया वो यूनिवर्सिटी का देखा गया। और दूसरा चीज़ ये देखी गई कि हम उस यूनिवर्सिटी को कहाँ बनाएं। आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि सर सैयद ने अलीगढ़ को क्यों चुना? क्या कोई जवाब दे सकता है, इसका बता सकता है? बताइए। सर सैयद ने अलीगढ़ को क्यों चुना? अलीगढ़ से सर सैयद का कोई ताल्लुक नहीं, यहाँ के रहने वाले नहीं थे। बताइए। ट्रांसपोर्टेशन है रेलवे लाइन सर यहाँ पे ले आ गई थी। चलिए, एक जोग्राफिकल क्या थी? इजी ट्रांसपोर्टेशन, इजी ट्रांसपोर्टेशन और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, है? असल चीज़ जो थी, सर सैयद ने कहा उस वक्त कि मैं अपने मुस्तकबिल की यूनिवर्सिटी उस शहर में बनाऊंगा जहाँ की आबो हवा सबसे बेहतर होगी। इन्वायरमेंट का कोई उसको तस्वुर नहीं था, उस वक्त सर सैयद इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। अब इन्वायरमेंट के लिए क्या था, उन्होंने डॉक्टर आर जैक्सन जो उस वक्त सिविल सर्जन था, इन्वायरमेंट बोर्ड नहीं था, पॉल्यूशन बोर्ड नहीं होता था, उसकी एक रिपोर्ट है। डॉक्टर हंट जो है वो पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर है, और एक ये जो गेट बना हुआ है बराबर में, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम पर गेट है। कौन सा गेट है, क्या नाम है इसका, बताइए। है छोटा बैग तो प्रेस में था, ये यहाँ लिखा हुआ है, देख के आइए फिर बताइए मुझे। है बड़ी भाई इबारतों पे जो कुछ लिखा है इसको तो पढ़ना चाहिए, देखना है। हेनरी जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी जॉर्ज लॉरेंस उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, और उसी ने ये ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र की ऐसे इजहार तशक्कुर के तौर पर, उसके नाम पर ये गेट बनाया गया अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम। हेनरी जॉर्ज लॉरेंस, यानी आप लोग हज़ारों बार इसमें से निकले हुए, कम से कम ये चीज़ें देखनी चाहिए, समझना चाहिए, मेरा मतलब ये है। तो इन लोगों ने ये किया कि पहले तो ये कहा कि अलीगढ़ में इसलिए बेहतर है ये आबो हवा के अतबार से कि यहाँ पानी की सतह 30 फुट है, तो आने वाले 5000 साल में भी यहाँ लोग 2 तरीके से बढ़ते थे, या तो कहर से बढ़ते थे या बाढ़ से बढ़ते थे। तो कभी भी पानी सतह 30 फुट है तो यहाँ कभी कहर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि कुर्ब जवार में कोई नदी नहीं है, कोई बहुत बड़ी झील नहीं है, तो यहाँ कभी बाढ़ नहीं आएगी। जैसे बिहार के लोग जो हैं देखा है, अक्सर जगह बिहार बाढ़ आती है, आसाम में आती है, अलीगढ़ में न बाढ़ का खतरा है न अकाल का खतरा है, 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ 74 एकड़ ज़मीन थी, ये यहाँ फौज की छावनी थी, ये खाली पड़े हुए थे। जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो फौज यहाँ से मुंतकिल हो गई, वहाँ चली गई। तो एक 74 एकड़ ज़मीन जो है वो आसपास में कहीं एक जगह पर नहीं मिल सकती थी, तो ये मिल गई। फिर जिसने कहा कि रोड का बहुत अच्छा वो था निज़ाम, ट्रेन सिस्टम था, और कुर्ब जवार में क्योंकि ये मुस्लिम इदारा बन रहा था, तो कुर्ब जवार में मुसलमानों की इजला थी, आबादी थी, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे ये रामपुर हो, ये सारे इलाके जितने भी थे कुर्ब जवार के, ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे, और यहीं से लड़के आने थे। तो ये इसकी बड़ी वजह थी। फिर किसी शख्स ने ये भी लिखा है कि हमारे यहाँ एक रिवायत है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अल्लाह के लिए कहा गया है, और अली उसका दरवाज़ा है। तो जी, तो वो उन्होंने ये भी कहा कि भाई अली के नाम से वो है, लिहाजा एक इल्म का दरवाज़ा जो है वो यहाँ कायम किया जा रहा है। तो ये इसकी वजह से ये कॉलेज यहाँ कायम हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, और पता नहीं आपने वो चीज़ें देखी हैं या नहीं। तो ये
देखिए ये वो पहली किताब है असबाब सरकशी तारीख सरकशी बिजनौर 1858 बिल्कुल ओरिजिनल सरसैयद के दौर की। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और पकड़ में आती है। सर सैयद जो स्पेलिंग लिख रहे हैं यहाँ पर SYUD, हाँ, और अहमद की जो स्पेलिंग हर जगह ए होता है, यहाँ यू लिखा हुआ है। मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ, इसीलिए आपको बताया। इस किताब को जिस आदमी ने लिखा है, तर्जुमा किया है अमीर मलिक ने, उसकी अंग्रेजी किताब ये है। हाँ, देख लीजिए। तीसरी चीज जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये पहली दफा मैंने कोशिश की है लोगों को मंजर आम पर लाने के लिए। असबाब बगावत हिंद का नाम हाली ने लिखा है, सारे लोगों ने लिखा, बड़े बड़े रिसर्चर्स ने लिखा, उस पर PhD हुई है। असल जो किताब है उसका नाम है असबाब सरकशी हिंदुस्तान का जवाब मजबूत, ये उसका टाइटल है। तो पूरी थिंकिंग और पूरी रिसर्च जो है वो खत्म हो जाती है। बिजनौर से यूपी गायब हो गया, हाँ? NOR रह गया खाली बिजनौर। जी, हाँ वही मैंने देखिए आप। तो असबाब सरकशी हिंदुस्तान का जवाब मजबूत, ये किताब जिसको अब असबाब बगावत हिंद कहा जाता है, ये 1859 में मुफसलाई प्रेस आगरा से शाया हुई। इसको अंग्रेजी में लिखा है एन एसे ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट बाई सैयद अहमद खान। अब यहाँ सैयद की स्पेलिंग जो है SYUD लिखा है। प्रिंसिपल सदर अमीन ऑफ मुरादाबाद। और तीसरी जो किताब है जो 3 वॉल्यूम में है या 3 उसके जर्नल है, एन अकाउंट ऑफ द लॉयल मोहम्मद्स ऑफ इंडिया, रिसाला खैर ख्वाहान मुसलमानान, ये मेरठ से छपा है। पहला शुमारा 1860 में, दो शुमारे 1860 में छपे और तीसरा शुमारा 1861 में छपा है। तो इस तरीके से ये सर सैयद और 1857 के ताल्लुक से ये 3 बड़ी चीज़ें आपके सामने हैं। और ये मैंने कोशिश की है कि अभी हालिया इस किताब को जो असबाब बगावत हिंद और 1857 के मुताल्लिक़ है, इस पर मैं गुफ्तगू करूँ। और मैंने इसको बहुत कोशिश की है कि सही उसमें आपके सामने लाया जा सके। मैंने आपको बताया कि 1860 में जो किताब छपी वो है NSA ऑन द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट बाई सैयद अहमद खान, ट्रांसलेटेड बाई WL Lees LLD, पब्लिश्ड बाई SS Wyman, होम सेक्रेटरीट कलकत्ता 1859। ये 1859 में ये कलकत्ता से छप गई है और पार्लियामेंट में जो बहस हुई है वो यही किताब हुई है। अच्छा, अब इन्होंने जो मुझे टॉपिक दिया था वो है तारीख सरकशी बिजनौर। तारीख सरकशी बिजनौर जो है वो 154 पेज की है, जिसमें 145 और 11 अलग है। और सर सैयद कहते हैं कि मैंने ये बड़ी कोशिश की है दयानतदारी के साथ कि कोई किसी की हमदर्दी ना हो, किसी के साथ वो ना हो, जो हक है उसको इस तारीख में जो कुछ लिखा है बहुत सा उसमें मेरी आंखों का देखा और बहुत सा अपने हाथ का किया हुआ है। इसके सिवा जो कुछ लिखा है वो निहायत तहकीकात से और बहुत सही और निहायत ही सही लिखा है। तो ये इस किताब को जो पहली किताब है, फिर इसमें सैयद मोइनुल हक जिनकी किताब आपके पास है उन्होंने पहली 1962 में सलमान एकेडमी कराची से शाये की, और एक शराफत हुसैन मिर्ज़ा जो बिजनौर से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने 1964 में
नक़द मुसन्नफ़ीन दिल्ली से शाये किया। इसी किताब को लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ की लाइब्रेरी में भी ये किताब ओरिजिनल मौजूद है, इसका अक्स मिल जाता है। और ये जो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका ने 1872 में इस किताब को शाये किया है, ओरिजिनल टेक्स्ट को। सियासी सर सैयद के सियासी अफकार व नज़रियात पर तहकीक करने वालों में दानिशवर हबीब मलिक और मॉरिस डेम्बो ने अंग्रेजी में हिस्ट्री ऑफ बिजनौर रिवेलियन के नाम से इदारा अदबियात दिल्ली से 1982 में शाया किया है। सरकशी ज़िला बिजनौर का मसला नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में महफूज है। किताब के एडिशन मजमूए में डॉक्टर मोइनुल हक का उन्होंने ये बताया है कि साहब मैंने जो लिया है वो वहाँ से लिया है, लेकिन जो किताब छपी है और वहाँ जो मकतूता है उसमें कुछ उन्हें तब्दीली नजर आती है। शराफत हुसैन मिर्ज़ा ने के पास भी सरकशी बिजनौर का वो है, वो ये कहते हैं इस किताब के बाद सरकशी बिजनौर के मुताले के बाद सर सैयद की शख्सियत एक ऐसे रोशन ख्याल फर्द की शख्सियत बनकर उभर के सामने आती है जो तामीर का ख्वाह है और तकलीफ से गुरेज़ा है, जिसकी यहाँ फरका वारहियत, तआस्सुब और तंग नजरी नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी, खुलूस नीयत, अमन पसंदी, हक गोई और हिम्मत व जुर्रत का जौहर है। वो अंग्रेज़ों की खुश अखलाक़ी, तंजीमी सलाहियत और सियासी अहलियत के मुअतरफ़ थे और वही औसाफ ज़िले की दूसरी रऊसा और हुक्मरानों में देखना चाहते थे। वो अपने एहसास बरतरी को भी किसी मौके पर मजबूर नहीं होने देते, जज्बातियत से अलग रहकर हक़ाइक़ की रोशनी में गौर व फिक्र उनकी शख्सियत का अहम पहलू था, जिसका सबूत उनकी ये किताब है। दूसरी मैंने आपको कहा कि कौन कौन सी, अच्छा ये जो असबाब वक़ात हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैंने आपको दिखा दिया कि ओरिजिनल नुस्खा ये है, हाल ही में इसको तब्दील किया है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मैं सर सैयद स्टडी का तालिब इल्म हूँ। मेरा ये मानना है आज कि हाल ही में जो भी कुछ लिखा है जिसको लोग 100% सही समझते हैं, मैं कहता हूँ 30% गलत लिखा है, बल्कि 30 से 40%। एक और काम जो बाद में हुआ, लाहौर में एक साहब थे मौलाना इस्माइल पानीपती, उन्होंने सर सैयद की जितने वक्त थे उनको सबको खुतबाते के नाम से शाये किया है। वो 17 जिल्दों में है। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से उसको 100% सही समझता था, लेकिन जब आप ओरिजिनल देखिए और उसको मिलाइए तो पता चलता है कि वहाँ भी डंडी मारी गई है। उसमें मैं मौलाना इस्माइल पानीपती को कसूरवार नहीं ठहराता। उन्होंने 2 लोगों को यहाँ अलीगढ़ में रख रखा था, वो 4 आने पर पेज देते थे और उन्होंने ये मुआहदा था कि आप 4 आने पेज जो है वो देंगे और हम इसको शाये करेंगे। तो वो 4 आने पेज में जो है बजाय सर सैयद की तहरीर के अपनी जुबान में जो कुछ उन्हें समझ में आता था वो लिख देते थे। तो अब इस्माइल पानीपती की तहरीरें भी मशकूक हो गई, हाल ही की मशकूक पहले से ही है। मेरा ये मानना है अगर आपको सर सैयद को पढ़ना है तो ओरिजिनल चीज़ों पर तवज्जो दीजिए और जो चीज़ें मौजूद है बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं और उन्हीं चीज़ों को पढ़िए। मैं ये भी मानता हूँ कि सर सैयद के पॉलिटिकल, जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा काम हफीज़ मलिक ने किया है, उसके बाद शाह साहब ने किया है। सर सैयद की मजहबी फिक्र पर सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो वो है बेंजॉन। वो हॉलैंड में रहता था, उस काम से मुतासिर होकर फिर एक अमेरिका में रहता है बशीर अहमद दार, उसका काम है। और तीसरा इन दोनों को देखने के बाद क्रिश्चियन डब्ल्यू ट्रॉल जो अभी इस वक्त जिंदा है उन्होंने किया है। उस किताब को, क्रिश्चियन ट्रॉल की किताब को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सर सैयद अकेडमी ने दोबारा शाये भी किया है और पिछले साल सर सैयद डे के मौके पर उनको हमने इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया है कि वो इतने बुजुर्ग आदमी हैं, हालांकि वो खुद नहीं आए थे। तो ये दूसरा काम जो सबसे मैं मतबार मानता हूँ वो एक है डेविड लेलीवेट, जो इस वक्त 90 साल 92 साल की उम्र के हैं
میں نے اپنی کتاب جب میں یہ لکھ رہا تھا تو میں نے ان کو لکھا 2 لائن کا. میں نے کہا کہ آپ تبرک کے طور پر مجھے 2 لائن بھیج دیجیے. انہوں نے کہا میں اس کا قائل نہیں ہوں, تم اپنی کتاب جو ہے مجھے بھیجو. میں نے کتاب بھیجی اور 1 مہینے کے اندر انہوں نے کتاب کو پوری پڑھی, اور پڑھنے کے بعد اس کا پریفیس جو ہے وہ انہوں نے لکھا. تو یہ پھر ان کی اصرار تھا کہ ساتھ اردو میں جو آپ لکھ رہے ہیں وہ بھی مجھے دکھائیے. تو اس سے مجھے پتہ چلا جو میں نے اردو کا بھیجا اس میں بھی انہوں نے 1 لفظ 2 لفظوں کو کہتے تھے کہ میرا مقصد یہ نہیں یہ تھا, ترجمہ میں ہو جاتا ہے. تو وہ اس سے مجھے پتہ چلا کہ وہ عربی بھی جانتے ہیں, فارسی بھی جانتے ہیں, اردو بھی جانتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی سر سید علی گڑھ تحریک کے لیے وقف کر رکھی ہے. ہم بدقسمتی سے علی گڑھ کے لوگ مجاوری کر رہے ہیں, سر سید کو پڑھ نہیں رہے, سر سید کے اوپر کچھ نہیں. ہم نے تسبیح کے دانے کی طرح سر سید کا استعمال کر رہے ہیں, جذباتیت سے کر رہے ہیں. آپ زندگی میں کوئی بھی چیز 2 لائن پڑھیے لیکن اوریجنل چیزوں کو پڑھیے. کسی نے میرے خیال سے جب سے میں نے یہ کوٹ کیا ہے کسی نے وہ اس کا یہ دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کس کی ایڈوائز ہے. آکلینڈ کالوین کون شخص تھا جو انڈین مسلمس کو ایڈوائز کر رہا ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے سر سید کی کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور سر سید کی زندگی میں کیا ہے. اور وہ گورنر بنتا ہے. سر سید اسی جلسے اسی ہال میں ان کو بلاتے ہیں اور بہت بڑا اس کی تقریر ہے, اور اس تقریر کو اتنے سر سید متاثر ہوتے ہیں کہ اس کو یہاں پر یہ ہے. تو ہمیں علی گڑھ کی تاریخ, کی تہذیب کو, اپنی ثقافت کو, ان چیزوں کو بچا کے رکھنا چاہیے اور اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. تو اچھا ایک چیز میں اور بتا دوں کہ جہاں میں نے ذکر کیا ہے, میں ایک اور آدمی کو مانتا ہوں. سر سید کے چاہنے والوں میں سب سے بڑا آدمی جو تھا اس کا نام تھا غاسق دتاسی. آپ نے نام سنا نہیں سنا؟ 2 اورینٹلسٹ کو میں بہت بڑی اہمیت دیتا ہوں. غاسق دتاسی کی خوبی یہ تھی کہ سر سید نے جب آثار الصنادید لکھی تو غاسق دتاسی پہلا شخص تھا جس نے اس کو ترجمہ کیا. اور پوری یورپین ورلڈ میں, ویسٹرن ورلڈ میں اگر سر سید کو متعارف کرایا تو غاسق دتاسی نے کرایا. اور اس کی وجہ سے سر سید کو ایڈنبرا یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی. سر سید کو کتنی بڑی بات تھی کہ وہ آدمی صرف سر سید کے کام, اس کو جانتا بھی نہیں تھا کون ہے کیا ہے. اس نے ان کی کتاب دیکھی, اتنا متاثر ہوا آثار الصنادید سے, اس نے اس کو ترجمہ کیا اور چھپایا, اور چھپانے کے بعد وہ کتاب پوری دنیا میں پہنچی اور اس کو سر سید کو ہاتھوں ہاتھ دیا گیا. اگر سر سید 1857 نہیں ہوتا تو بہت بڑے مبارک ہوتے, مذہبی امور میں کام کر رہے ہوتے, سماجی امور میں کام کر رہے ہوتے. 1857 میں سر سید کو پورا سوچ بدل دی, پاسا پلٹ دیا, ساری چیزیں بدل گئی. تو یہ بڑا کام تھا. دوسرا ایک اور شخص ہے, اس کا نام ہے ہیملٹن گب. نام سنا آپ نے؟ سب سے بڑا اس دور کا وہ جو ہے وہ اورینٹلسٹ ہے. وہ کیا کہتا ہے ہیملٹن گب کی زبان میں؟ ہیملٹن گب 1895 میں پیدا ہوا, 1971 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. نے سر سید کے قائم کردہ درسگاہ کو, اس یونیورسٹی کو, اسلام کا اولین جدید ادارہ, فرسٹ ماڈرن انسٹیٹیوشن ان اسلام, اس نے کہا ہے, یہ میں نہیں کہا, گب نے قرار دے کر ان کی جدوجہد کے میدان میں اسلامی تاریخ کے وسیع پس منظر میں پہچاننے کی کوشش کی ہے. اس طرح سر سید کے کارنامے ترکی کے مدت پاشا اور فواد پاشا, ایران کے حجت الاسلام شیخ ہادی نجم آبادی, مصر کے مصطفیٰ کمال, تیونس کے خیر الدین پاشا, الجیریا کے میر القادر, طرابلس کے امام محمد سنوسی, افغانستان کے جمال الدین افغانی اور روس کے مفتی عالم جان کے کارناموں کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جہاں دنیا میں یہ بڑے لوگ تھے وہاں ہندوستان میں سر سید تھے. تو یہ ان کا گلوبل اس کی اسٹڈی کرنا, اور ایسے ایسے لوگ موجود ہیں. اچھا, تو میں نے بھی ایک آپ کو یہ بتایا کہ صاحب دہلی کالج جو ہے, جو بڑی بات تھی جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ 1857 میں وہ ہو گیا, تو اس کو 2 ٹکڑے ہوئے. ایک حصہ اس کا جو عربی کا حصہ تھا
वो मौलाना मुंडो करीब मौलाना कासिम नानोती देवबंद ले गए और देवबंद बना। उसका जो अंग्रेजी हिस्सा था दिल्ली कॉलेज का, वो सर सैयद अलीगढ़ ले आए। ये मेरा कहना नहीं है, अनवर सदीक का बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका। अब तो ज़ाहिर है तशरीहात हो रही है, तो उनकी एक तशरीह ये भी है, तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए कि 1857 के क्या असरात थे। और जो पूरा मौजूद ही बहस का ये है। अच्छा, फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सर सैयद के सियासी नज़रियात के सबसे ज़्यादा दुश्मन हैं, लेकिन सर सैयद की मजहबी फिक्र के सबसे ज़्यादा मुगल हिमायती थे। और वो अब्दहू से ज़्यादा कहते हैं कि अब्दहू पर जो भी असरात बरकता हुए वो सर सैयद की वजह से। और वो एक तो ये था। दूसरा, 1947 के बाद जब इस इदारे का वजूद खतरे में था, तो मुझे लगता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाहिद ऐसे शख्स थे कि उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन को यहाँ वाइस चांसलर बना के भेजा, और उस वाइस चांसलर ने इस इदारे को एक नई जिंदगी दी। एक कॉलेज बनाया सर सैयद ने। उस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आगा खान का, जिन्होंने 30 लाख रुपये चंदा जमा करवाया, और 47 के बाद इस यूनिवर्सिटी की उसको वजूद को बाकी रखने में अगर किसी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो वो जाकिर साहब का है। नहीं बोलिए साहब, मुझे कोई नहीं। इसमें तो आमिर भाई आपकी बड़ी अच्छी रिसर्च है। अच्छा, अब देखिए, हाल ही में एक जगह लिखा है आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके कॉलेज के मुताबिक, जब 1857 में जब सियासी इक़्तिदार हाथों से जाता रहा, तो सर सैयद ने इल्म व दानिश की एक नई ममलकत की बुनियाद रखी। वो नई ममलकत क्या है? अलीगढ़। ये सिर्फ एक दरसगाह नहीं थी जहाँ सरकारी मुलाजमतों के लिए दरकार असरात फराहम की जाती थी, बल्कि इसके ज़रिए मुसलमानों की तहजीबी और नफ्सियाती ज़रूरतों की तकमील भी होती थी। सर सैयद को अपनी शकील खुर्दा कौम की उन ज़रूरतों का इदराक भी था, और उनकी तकमील के लिए जो वसाइल दरकार थे उनका शऊर भी। मदरसतुल उलूम की खूबसूरत और पुरशिकवा इमारतों की तामीर भी इसी मंसूबे का हिस्सा थी। मुल्क का कोई इदारा मिली उम्मीदों, आरजुओं और अकीदत और मोहब्बत का ऐसा बरकत नहीं बन सका जैसा सर सैयद का ये इदारा। सर सैयद की सियासी बसीरत, सर सैयद की बसीरत के मुसन्निफ इसरार आलम ने सर सैयद की शख्सियत और उनके कारनामों पर सैर हासिल बहस करते हुए लिखा है, हिंदुस्तान में सर सैयद जैसा अब करीब बाइस्तिस्नाए गालिब शायद ही मिल्लत इस्लामिया में पैदा हो। अंदुलस सिर्फ इसलिए स्पेन बन गया कि वहाँ 15वीं सदी में कोई सर सैयद पैदा ना हुआ। सर सैयद का ये कारनामा तारीख में जिंदा व जावेद रहेगा कि उन्होंने अलीगढ़ बनाया। सर सैयद के जानशीन सर सैयद की अब्करियत को कहाँ पा सके। काश उनके रफ़क़ाए मक़रबीन में से कोई आरिफ जंग का असर अशीब होता है। ये उनका आखिरी वो है। मैं एक चीज़ आपको, उनको खिताब मिला था, मुगल बादशाह ने उनको आरिफ जंग का खिताब दिया, टाइटल दिया था। अब देखिए, मैं जो इस ख़त्म करना चाहता हूँ इसको, एक चीज़ जो इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, जो बाद में सदर जमहूरिया हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका मैंने भी हवाला दिया, उन्होंने एक तकरीर की है। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की कौमी ज़िंदगी का एक कसर तामीर करना चाहते थे, जिसमें बहुत से गोशे थे। वो इस पूरे कसर को तामीर न कर सके कि इंसानी ज़िंदगी महदूद होती है और वक्त के तकाज़ों से तैयार नहीं होती। उन्होंने कसर का वो हिस्सा बनाया जिससे उन्हें तवक्को थी कि बाद में आने वाले नक्शे को समझेंगे और उनकी तकमील करेंगे, और बाद में आने वालों ने उसे शख्सियत का मकबरा बना दिया। मकबरा उसे कहते हैं जहाँ इंसान का जिस्म दफना कर उस पर इमारत बना दी जाए, लेकिन हमने इस मकबरे में सर सैयद के अफकार को दफन कर दिया और वो जो चाहते थे उसे भुला दिया।
وہ بہت کچھ چاہتے تھے، ہم بہت کم حاصل کر سکے. وہ ہمارے سارے تمدن کو ایک نیا رخ دینا چاہتے تھے. ہم نے ان کے کام کو انگریزوں کی نوکریاں حاصل کرنے پر محدود کر دیا. وہ ہمیں حقیقی اپنی زندگی دینا چاہتے تھے، ہم نے ایک کھلونے پر اثر کیا. تو میرے عزیزوں، اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو میں ایک چیز جو محسوس کرتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ 71-72 میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. اس وقت میں اس میں جو فرق آیا ہے، ایک چیز تو بہت اچھی ہوئی. میرے دور میں زیادہ تر 3rd کلاس اور 2nd کلاس لوگوں کو داخلہ ملتا تھا. اب 80% اور 90% لڑکی والے جو ہے ان کو داخلہ ملتا ہے. بڑی اچھی بات ہے، یونیورسٹی ترقی کر رہی ہے. لیکن ایک چیز جو مجھے لگتی ہے کہ ایک تھی احساس شراکت، یعنی سینس آف بلانگنگ اور سینس آف پارٹیسپیشن. وہ ہمارے دور میں زیادہ تھا، اب بالکل نہیں. اگر اس ادارے کو بچانا ہے، یہ ایک ملی ادارہ ہے، سر سید کا ادارہ ہے، اگر آج کسی سے کوئی سبق لے سکتے ہیں تو کم سے کم جو کمٹمنٹ ہے ہمارا وہ ہمیں کرنا چاہیے اور آخری وقت کرنا چاہیے. میں اس وقت 68 سال کی عمر کا ہوں. میں سر سید کو دیکھتا ہوں. سر سید کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد کی ہے. سر سید جب 1876 میں ریٹائر ہو گئے تب وہ علی گڑھ آئے اور 77 میں ایک کالج بنایا. تو جتنے علی گڑھ میں ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. اب اگر لکھنے والے ہیں تو کتابیں لکھیں، بچوں کو پڑھانے والے ہیں پڑھائیں، سماجی کام کرنے والے سماجی کام. کہیں نہ کہیں انوالومنٹ رہنا چاہیے. اور خاص طور سے یہ جو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک چیز جو اس ڈیٹ میں 8 جنوری 1877 کو سر سید نے کہی، میں اسی پر قدر کرتا ہوں. سر سید نے کہا کہ یہ ادارہ میں کیوں کام کر رہا ہوں، یہ اس ادارے کا مول منتر جو ہے وہ معلوم ہے کیا ہے؟ لارج ہارٹیڈ ٹالرنس، پیور مورالٹی اور فری تھنکنگ. کیا اب آپ اپنے گربان میں جھانکیے اور محسوس کیجیے کہ کیا آپ میں لارج ہارٹیڈ ٹالرنس ہے، کیا آپ میں پیور مورالٹی ہے، کیا آپ فری تھنکنگ ہے. اگر آپ میں یہ ہو گیا ایک بھی چیز تو میں سمجھتا ہوں اس ادارے کی قائم کرنے والے کا مقصد پورا ہو گیا. بہت بہت شکریہ. اگر کوئی سوال کرنا ہو. شکریہ سر، بہت بہت شکریہ ہم لوگوں کو انلائٹن کرنے کے لیے. اور یقیناً سر سید جیسے ایک بڑے کینوس کو جاننے کے لیے یہ وقت مطلب آلموسٹ نہ کے برابر ہے. سر سید ایک بہت بڑے فریم کی شخصیت ہے. افسوس جیسا کہ سر نے بھی ظاہر کیا، یقیناً یہ حقیقت ہے کہ سر سید کو ایک بہت چھوٹے فریم میں محدود کر دیا ہم نے، خود علی گڑھ والوں نے، اور صرف ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر، ایک ایجوکیشنسٹ بنا کر رکھ دیا. اس میں کوئی شک نہیں. جبکہ ہم نے اسی لیے جو پوسٹر ہم نے ریلیز کیا اس پروگرام کا، اس میں ہم نے ایک ایک چیز جو سر سید کا جس فیلڈ میں کنٹریبیوشن ہے وہ سب ہم نے سم اپ کرنے کی کوشش کری ہے. اس میں ہم نے سر سید کو ایجوکیشنسٹ کے علاوہ اس میں تھیولوجین بھی لکھا ہے، اس میں ہم نے آرکیولوجسٹ بھی لکھا ہے، اور سر سید کو فرسٹ آرکیولوجسٹ بھی کہا جاتا ہے انڈیا کا. اور یقیناً وہ ہے. اور جیسا کہ سر نے بتایا، اس مسجد اور اس میں جو قرآن کی آیتیں والے جو اسٹون لگے ہوئے ہیں، جو خطبے لگے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو سب سے لاسٹ میں اس پوسٹر کو اگر آپ دیکھیں گے تو سر سید کی تمام کوالٹیز میں جو ہم نے لکھا ہے اس میں سب سے لاسٹ میں وہ چیز لکھی ہے جس کے اگینسٹ سب سے زیادہ اٹیک سر سید پر آج کے ٹائم میں ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم نے اس میں لکھا ہے اینڈ دا موسٹ سیکولر پولیٹیکل لیڈر آف انڈیا آفٹر 1857 ٹل ناؤ. یہ سب سے میرے خیال سے ایک کنٹروورشل لائن ہو سکتی ہے اس حوالے سے کہ اس کے بالکل برعکس چیزیں پروپوگیٹ کری جاتی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ علی گڑھ کے باہر، نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی پر جو دوسری پارٹیز ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، جو اپوزٹ گروپس ہیں وہ کرتے ہیں، بلکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ خود ہمارے اپنے لوگ ایون علی گڑھ میں یہ پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ سر سید کو کرمنل دکھایا جاتا ہے اور ڈفرینٹ اینگلس دکھائے جاتے ہیں. بہرحال مجھے آج تک کوئی بھی شخص ایسا نصیب نہیں ہوا
کہ جس نے اس طرح کی بات سر سید کے بارے میں کہی ہو اور میں نے پلٹ کر ہمیشہ یقین جانیے گا سر. میں ایک انسیڈنٹ اپنے بتاؤں. میں علی گڑھ میں تھا اور میرے پاس جامعہ سے ایک کال آئی. ایک لڑکا وہاں یہاں سے گریجویشن کر کے گیا تھا, وہ ماسٹرس کر رہا تھا. وہاں کچھ گروپ آف اسٹوڈنٹس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ڈسکشن چل رہا تھا اور سر سید کے بارے میں اسی طرح کے کچھ خیالات وہاں پر لوگ ظاہر کر رہے تھے. تو اس لڑکے نے, میرے جونیئر تھا, اس نے مجھے فون کیا اور فون کر کے یہ کہا کہ عامر بھائی ایسے ایسے ڈسکشن ہو رہا ہے تو آپ ذرا کچھ بتائیے. تو آپ یقین جانیے گا میں نے نہ ان کی کچھ سنی نہ اپنی کچھ بتائی. میں نے صرف ایک بات کہی, میں نے کہا جتنے بھی لوگ وہاں تمہارے پاس بیٹھے ہیں وہاں تم کیا بات کر رہے ہو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے اتنا بتا دیا میں اتنا انف ہے. اب میں نے کہا وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں صرف ان سے اتنا پوچھ لو کہ کتاب تو بہت دور کی بات ہے, سر سید کا لکھا ہوا ایک چھوٹا سا آرٹیکل بھی اگر انہوں نے کبھی پڑھا ہو تو اس آرٹیکل کا نام بتا دیں, اس آرٹیکل کے حوالے سے ایک سوال کروں گا اس کا جواب دے دیں. تو آپ یقین جانیے گا کہ وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے بھی ایک آرٹیکل کا نام نہیں بتایا. پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا تو مجھے کیسے پتا ہے؟ انہوں نے نہیں پڑھا, میں تو جانتا بھی نہیں, میں دیکھ بھی نہیں رہا. مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ سوال, یہ باتیں جو نگیٹو باتیں سر سید کے بارے میں پروپوگیٹ کی جاتی ہیں, یہ پروپوگیٹ دو ہی لوگ کر سکتے ہیں. ایک وہ جنہوں نے سر سید کو کبھی پڑھا ہی نہیں, صرف ذہنی خیالات پر ایک امیج کریٹ کر لی. دوسرے وہ جو حقیقت میں کوئی پروپیگنڈا چلا رہے ہیں, سب کچھ نالج رکھنے کا. اس کے علاوہ جس نے پڑھ لیا, جس نے اسٹڈی کر لیا, وہ لٹرلی مرید ہو جائے گا سر سید کا. میں سر سید کا فین ہوں, اس لیے نہیں کہ سر سید کے دائرے میں پڑھ رہا ہوں, سر سید کے نام سے ڈگری مل رہی ہے, نہیں, بلکہ اس لیے کہ سر سید تو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور پورے یقین, پورے اعتماد کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں. اور آپ لوگ جب کتابیں کھولیں گے تو آپ کو وہ چیز ملی بالکل صحیح ثابت ہوتے ہوئے نظر آئے گی. آپ سر سید کو جتنا پڑھتے جائیں گے, میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ کو سر سید سے عشق ہوتا چلا جائے گا. وہ چیز ہے سر سید. تو بہرحال اب جیسا کہ سر نے کہا کہ کچھ کوائریز, کچھ سوال, کچھ کراس کوشچنس آپ لوگوں کے ہوں تو آپ لوگ. ایک چیز اور میں آپ سے بتا, دیکھیے سر سید کو اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنے تمدن سے اور اپنے احساسے سے کتنا عشق تھا. یہ جو سامنے آپ نے دکھا ہے کے اندر والے حصے عربی میں وہ لکھا ہوا ہے. میں 40 سال کا میں خدا بہادر نظر میں سمجھتا تھا قرآن پاک کی آیت. ایک دن میں نے دیکھا اس پہ سمیرہ لکھا ہوا, آگے دیکھا کہ وہ نہیں, وہ جو لمبا لکھا. پھر ایک جگہ دیکھا کہ اسماعیل تاؤدی لکھا ہوا ہے, ایک جگہ سید احمد لکھا ہوا ہے. یہ تو میرا پورا 40 سال کا وہی ہر وقت گھما ہوں, ایک ایک گلی, ایک ایک اس کو پڑھا ہے, ایک کو دیکھا, یہ ہے. میں نے اس کا فوراً چھوڑ دیا, اردو لینے کے بعد ملاج کیا اور میں شعبۂ عربی میں گیا. میں نے کہا کہ صاحب میں یہ ذرا کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ عربی اور کالج کی تاریخ, عربی زبان میں سر سید نے اس کالج کی تاریخ جو ہے وہ کتنا ابھی ہم نے جب جہان سید کافی ٹیبل بک چھاپی تھی تو اس کو ہم نے دیا ہے, ہم نے اس کا انگریزی میں میرا تو 12 سال گھوم رہا تھا, آج تک نہیں پڑھا ہوتا. جی ہاں, وہی بتا رہا ہوں. دیکھیے میں تو اوپر نوکری بھی کی ہے, یہاں پڑھا بھی ہوں, سب کچھ ہے. یہاں امتحان دیتے تھے, بچے صاحب بھی کریں گے, میرا داخلہ یہاں ہوا تھا اور کیا یہاں ہمارے ڈپارٹمنٹ تھا, سب کچھ تھا, لیکن نہیں پڑھتا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھیے, دلچسپی پیدا کیجیے تو اٹریکشن پیدا ہوتا ہے, کشش پیدا ہوتی ہے. آپ نے ایک سوال سر سید کو سیکولر کیا. اس طرح کے پروگرام کا یہ بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے, یہ جو انکوزیٹنیس جو پیدا ہو, اب پڑھیں گے آپ, ہاں وہی بہت کرنا شروع کریں گے. ایک چیز, دوسری بات یہ کہ آپ نے سیکولر کی بات, میری اگلی کتاب جو ہے وہ صرف اسی بات پر ہے. میرا ٹارگیٹ کیونکہ میں پاپولیشن کا آدمی ہوں, میں جانتا ہوں کہ 90% جو غیر مسلم ہیں ان کا مزاج آپ کے خلاف ہے. رائے عامہ کو ہموار کرنا ہم لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے, مجبوری. تو سر سید نے ایک جگہ کہا ہے کہ میں فقر سے کہتا ہوں میں مجھے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے ہندو نہیں مانتے. اس سے بڑا نہ ہوگا. سر سید نے, ابھی میں نے اس کو کوٹ کیا نہیں, وہ ڈائٹ کر رہا تھا اور کم موبائل سے سر سید نے کہا کہ میں یہ کالج آکسفورڈ اور کیمبرج کے پیٹرن پہ نہیں بنا رہا,
मैं बना रहा हूँ कुर्तुबा की, मैं बना रहा हूँ बगदाद की, मैं बना रहा हूँ जामिया अदब के ऊपर, और वहाँ सारी दुनिया के लोग इल्म हासिल करने आते हैं। यूरोप में जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बने हैं, उन्होंने भी सारा इल्मी जो प्यास है वो वहाँ जाके बताया। सर सैयद ने बड़ी लंबी बहस की कि खाना क्या होगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो अरबों की तरह कबाब में जो होती है बड़ी प्लेट में खाना खाते सब लोग मिलकर जमीन पे बैठते। तुर्की का लिबास ये तरीका ये है कि वहाँ मेज कुर्सी पे खाया जाता है, तो मैंने कुर्सी उसका तुर्की का खाने का तरीके को अपनाया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में वहाँ चर्च होते हैं, इतवार तक जाना पड़ता है। हम क्योंकि मुसलमान हैं, लिहाजा मैंने मस्जिद बनाई कि यहाँ 5 वक्त नमाज लाजमी। ये जो छोटा मॉरिसन जो था उसकी ड्यूटी थी, वो कमरे से लड़कों को लेकर जाता था और सबको नमाज पढ़वाता था। जो नमाज नहीं पढ़ता तो उसको फाइन होती थी। ससीद के दौर में ये लाभ नहीं था। तो ये सारी चीजें थी एक बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सर सैयद के मजहबी अफकार के बारे में बहुत सी चीजें थी। सर सैयद ने कहा कि जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ वो आने वाले 100 साल के लिए है, और वो बात सही साबित हुई। सर सैयद को जो वो शैतान और रजीम समझते थे, अब वही लोग अगर रहमा कहते हैं, यानी बहुत चेंजेस आई हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, सर सैयद ने कहा कि मौलाना कासिम नानोतवी जो दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं, वो हमारे यहाँ दीनियात का निसाब तैयार करें, खतों किताबत चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम बना देंगे, लेकिन हमारी ये शर्त नहीं। वो शर्त क्या थी मालूम है कि इस कॉलेज में जिसमें हमने निसाब बना रहा है उसमें सिर्फ सुन्नी पढ़ेगी। सर सैयद ने कहा कि मौलाना आपकी इमामत, आपकी क़यादत, आपकी वो आपको मुबारक हो, मेरे कॉलेज के अंदर ये मुमकिन है। मेरे कॉलेज में शिया भी पढ़ेंगे, सुन्नी भी पढ़ेंगे, वहाबी भी पढ़ेंगे, और जिस उसका हिंदू भी पढ़ेगा, ईसाई भी पढ़ेगा, पारसी भी पढ़ेगा। ये बराबर में जो जगह है यहाँ पर शियाओं की मस्जिद बनने को तैयार हो गई। मैंने नक्शे देखे और लिखा है। उस सिर्फ एक फैसले की वजह से सर सैयद ने जो कासिम नानोतवी को ये जवाब दिया, शियाओं की मिसाल दी थी। उन्होंने कहा कि आज से हम फैसला करते हैं कि हम कोई मस्जिद नहीं बनाएंगे और इसी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। और दुनिया में ये वाहिद इस तरह की मस्जिद है खाली जगह के बाद जहाँ शिया और सुन्नी दोनों एक साथ। बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को, क्योंकि वक्त का वो है तो मैं फिर कभी हाँ मैं हाजिर हूँ। देखिए मैं एक चीज मांग, ये तो सर स्टूडेंट्स को इनको वो होना चाहिए प्रॉब्लम। मैं एक चीज मांग, इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद का तो कोई पत्थर है तो वो तालिब इल्म है, और तालिब इल्म से इंटरेक्शन रहना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और मैं उसके लिए हमेशा तैयार था। मैं पब्लिक रिलेशन में था, जब भी कोई रात को 11 बजे 12 बजे दिन में आइए बात की। तो ये हमारी जो खराबी है कि कम्युनिकेशन गैप जो है नहीं होना चाहिए टीचर से स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। अब बोलिए आप सवाल कर। सर सैयद को जानने के लिए बिगनर्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी जिस सर सैयद को पढ़ें, जिससे हम भी अभी हम बिगनर्स। देखिए अब तो बहुत ही मेरा मानना ये है कि ये किताबों पर लिखने का उसका ज़माना कम हो रहा है। अब नेट पर बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, आपको एक सवाल डालिए आपको जवाब मिल जाता है। तो ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें हैं, वो कीजिए। बल्कि भी आज मैं उनको देख रहा था कि अगर हम ये जैसे अभी आज मैंने जब उन्होंने पोस्टर डाला है तो कम से कम 50 लोगों ने मुझे वो किया है कि साहब आप क्योंकि जानते हो सर सैयद को, आप तो कुछ पढ़ा है, हम ये चाहते हैं दुबई में बैठे हो, सऊदी में बैठा हो, अफ्रीका में बैठा हुआ कि इसकी जो है वीडियो जो है वो यूट्यूब पर उसको होनी चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि ये जो है ना हमारे पास लेटेस्ट कम्युनिकेशन के जराए हैं, हम उसको इस्तेमाल करें और उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए। फिर भी एक दो रेफरेंसेस भाई मेरा मानना ये है, अगर आपको अंग्रेजी में पढ़ना है तो मैं सबसे बेहतरीन किताब अगर रिकमेंड करता हूँ तो डेविड लेनिवेट की है, अलीगढ़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ अलीगढ़, फर्स्ट सबसे बेस्ट किताब है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ अलीगढ़ फर्स्ट जनरेशन, अलीगढ़ फर्स्ट जनरेशन बाय डेविड लेनिवेट, डेविड बेस्ट किताब है। और बोलिए जी।
सर मेरा एक सवाल है। हाँ सर बिल्कुल। सर आप एक ब्रीफ में क्या लिया 1857 की कंट्रीब्यूशन सर सैयद अहमद खान की तरफ क्या सर सैयद अहमद खान का यार, अगर ये 1857 में होता तो ये इदारा नहीं होता। मैंने आप मेरी या तो समझ नहीं पाए। मेरा कहना ये है कि अगर सर सैयद नहीं होते 1857 में तो ये मुल्क स्पेन बन गया होता और हम और आपका वजूद नहीं होता। यूनिवर्सिटी तो बहुत छोटी चीज़ है, मैंने तो ये भी कहा है। अब बोलिए आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या चीज़? यही बस जानना था। स्पेन में क्या हुआ मुसलमानों के साथ, वो पता है एक आपको? यूनिवर्सिटी एंडलुसिया में जी, 8 एंडलुसिया साल में। हुकूमत थी मुसलमानों की, जी जी, वो पूरा इलिमिनेट चुनाव हुआ। वो वही इसके ऊपर सर सैयद के मज़ामीन है अंदरुसिया जामिया घर पर। वो क्योंकि मौका नहीं है कि दूसरा ये क्लाइंट नहीं है, मैं बुलाया नहीं है, मैं क्यों तरह वो करूँ। और ज़ाहिर है हम भी सर थोड़ा कल्चर में बैठने में अच्छा लग रहा है, इसीलिए इस तरह हाँ हाँ नहीं होना चाहिए। देखिए मैं तो इसलिए आया हूँ। हाँ, और बताइए। हाँ बिल्कुल जी। सर सैयद की एक प्रॉब्लम थी जो कि बहुत सारे राइटर्स ने लिखी है, जैसे कि फ्रांसिस रॉबिन्सन, पीटर हार्डी ने लिखा है कि सर सैयद अहमद खान का जो मकसद था, और वो अपने स्पीच की लखनऊ 1890 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि बंगालियों से बहुत डरते थे, बंगालियों से बहुत डरते थे, तो उसमें वो उर्दू स्पीकिंग एलीट की ही ज़्यादा बात कर रहे थे। सर सैयद पूरे अपने कैरियर में ज़्यादातर जो बात कर रहे थे वो सिर्फ बात कर रहे थे उर्दू स्पीकिंग एलीट की। कल ही मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था महेंद्र प्रताप की, तो उसमें भी वो ये लिखते हैं कि जब मेरा दाखिला यहाँ पे एडमिशन हुआ था यही साउथ में, तो मेरे साथ एक काफिला चला था, तो वो नवाबी कल्चर ज़्यादा था। तो देख, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं भी मानता हूँ। जिस वक्त सर सैयद ने ये कॉलेज शुरू किया, क्या तालीम आम घरों में थी? चंद घरों में थी। सिर्फ एलीट क्लास में है? सिर्फ एलीट क्लास में सिर्फ एलीट क्लास में या फाइनेंशियली बहुत वीक। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ पानी पिलाने वाला अलग, और पंखे ये वाले पंखे थोड़ी होते तो झलने वाले वो अलग। कोई 30 दिख रहा है, कोई 35 दिख रहा है, कोई 40 दिख रहा है। ये सबको इजाजत थी कि वो जिसको चाहे लोगों को रखे, कोठियाँ दी जाती थी। 300 आदमी, मुझे इल्म है सबका और मैं पूरी डिटेल जानता हूँ। तो तालीम बड़ी बेहतर थी। सर सैयद का ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने तालीम को आम बनाया। आज बिहार और बंगाल और ये इलाकों के वो लोग जो तालीम को तसव्वुर नहीं कर सकते थे, वो यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पता है, मैं कह सकता हूँ दुनिया में सबसे सस्ती तालीम अगर कहीं है तो वो अलीगढ़ में है। हाँ, तो कितनी यहाँ कोई तफरीक है किसी की? ये सब वो पढ़ेगा। सर वैसे एक छोटा सा सवाल ये हाँ। है कि जो अभी 5-6 साल से फीस में जो इन्होंने बढ़ावा दिया है, तो क्या इस पे सर ने जो ख्वाब देखा था उस पर असर पड़ेगा? देखिए क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया था सर सच बताऊं 1700 रुपये जमा किए थे और डाइनिंग फीस कटती थी 575 रुपये। महंगाई तो बढ़ेगी भाई, लेकिन ये इदारा इसलिए नहीं बना कि महंगाई बढ़ती रहे और फीस बढ़ती रहे। ये इदारा बना गरीबों के लिए। सुनिए, अब मैं अपना वाक़या बयान करता हूँ। मैंने प्री यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, MA और PhD किया। आप 1700 की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने 700 में दाखिला पूरी तालीम। नहीं पूरी तालीम। तो जैसे जैसे वो हुआ तो तालीम तो उस जमाने में मैंने कुछ 700 रुपये में तालीम हमने अब दोनों एस्पेक्ट है। उस वक्त ज़्यादातर 700 वाले जी सैलरीड है कितने लोग? अब चुंगी से लेकर यहाँ शमशाद तक है कि ये दोनों तरफ फर्क जी है। अंदाजा हो जाएगा कितने लोग जी बताइए। एक्चुअली मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ एंड जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहीं पे सर सैयद अहमद खान ने गुलशन मदरसा बनाया था। तो वहाँ पर जो गुलशन वहाँ कहते हैं कि यहीं पर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में बनने को थी कि स्टार्टिंग की, मतलब यहीं पर यूनिवर्सिटी बनाई जाए। बट कहते हैं लोग इस्लामिक स्कॉलर ने मतलब उसकी इजाज़त दी, क्रिटिसाइज बहुत हुए। तो क्या इस्लामिक स्कॉलर जो है वो इसके जिम्मेदार हैं? मैं इसका
जवाब दूंगा आपको। एक बहुत बड़े हस्ती थे, उनका नाम था ज़हूर साहब, जिनके नाम पर प्रॉक्टर ऑफिस के बराबर में ज़हूर गेट है, और ये ज़हूर पार्टी जहाँ इस्लामिक स्टडीज और पर्शियन डिपार्टमेंट है, वो मुरादाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने ये कहा कि आप मुरादाबाद में बनाइए, 1 रुपया भी किसी से चलने की जरूरत नहीं, मैं बनाऊंगा। लेकिन सर सैयद का मकसद वही था कि साहब जहाँ इन्वायरमेंट सबसे बेस्ट हो, जहाँ जो वो सारी चीज़ें हों, तो वो था। दूसरी बात, आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं, आपने वो देखा है कभी सर सैयद का जहाँ बीवी का? जी जी मैं गया हूँ। कहाँ पर है वो? सर कहते हैं पालो का दरीबा है आज वो हाँ। उसके अंदर वो फाटक है, वो शौकत बाग। शौकत बाग, उसके अंदर जी। जाके मैंने हाँ। फातिहा। अब देखिए शौकत बाग मिसाल के तौर पर उस पर है, 99% लोगों ने लिखा है कि शौकत बाग कब्रिस्तान में उनकी वारदात बेगम दफन है। मुझे भी लोग बुलाते हैं कि साहब आप आ जाइए, मैंने कहा इस शर्त पे आऊँगा कि मुझे उनकी बीवी की कब्र पर जाकर देखना है, मेरी ख्वाहिश है। तो उसकी बाउंड्री कर दी है। तो अब देखिए कब्रिस्तान तो कहीं नहीं है, वहाँ पर 2 कब्रें हैं, एक सर सैयद की बेगम का और एक ज़ैनुल आबिदीन साहब की बीवी का, तो दोनों का फ़र्क बहुत दूर उसका है। और जिसने भी लिखवाया है उसने उस पर 1860 लिखा है। सर सैयद की बेगम का इंतकाल 1861 में हुआ है, उसने 1860 लिखी। तो ये तारीख को जो गलत पेश किया जाता है तो ये नहीं होना चाहिए। मैं खुद देख के आऊँ। तो सर इस कहीं ना कहीं जो मतलब क्रिटिसिज्म जो है इस्लामिक स्कॉलर जो है सर वो क्रिटिसाइज करते थे सर सैयद अहमद खान। हाँ क्यों नहीं, वो तो यहाँ भी आज भी है, आज भी है, मेरे पास सैकड़ों है, आपको किताब दिखा दूंगा। उसका तो सर आपने जिक्र भी किया बेल जॉन का। जी बेल जॉन ने तो यूज्ड टर्म किया कि इट बिकेम अ प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। जी जी जी। तो ये तो भैया एक चीज़ और सर सैयद मुल्लाओं के लिए नहीं थे, मुल्ला का हो सकता था। एक चीज़ और सर ने अभी बात कही थी कि सर सैयद कितनी छोटी चीज़ों पर सर सैयद की निगाह रहती थी। इस वक्त हालिया दौर में एक चीज़ मेरी निगाहों के सामने से है जो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त आप सबके सामने बोलूँ, शायद आप लोगों के जहन में रहे। अभी कैनेडी में आई थिंक शायद परसों प्रोग्राम हुआ करबल कथा, ठीक, और एक दूसरा प्रोग्राम हो रहा है साहित्य उत्सव, ठीक। मतलब इसमें टर्म किस लैंग्वेज की आ रही है वो आप समझ ही गए, ठीक है। अब इसी के बरक्स दूसरी चीज़ अगर आप लोगों ने गौर करी हो, ना करी हो तो अब कर लीजिएगा। अलीगढ़ एग्जीबिशन का नाम हमेशा से नुमाइश रहा, ठीक, लेकिन पिछले 2 साल से या गालिबन 3 साल से उसको प्रदर्शनी कर दिया गया, अलीगढ़ प्रदर्शनी, ठीक। इसी साल अभी 15 अगस्त पर अमर उजाला ने कैंपेन किया और एक नारा है माँ तुझे सलाम। तो अमर उजाला के पोस्टर पर सर माँ तुझे सलाम की जगह माँ तुझे प्रणाम। आप समझ रहे, छोटी छोटी चीज़ों पर निगाहें हैं उनकी, और हमारी क्या है वो दिख रहा है। साहित्योत्सव, करबल कथा, दास्तां गोई भी हो सकती थी करबल। और कोई सवाल सर? अभी मैंने पढ़ा कि रिसेंट में कि मौलाना मौदूदी और सैयद कुतुब की किताबों पर यहाँ पे शायद बैन लगा हुआ है, वो यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी, इनका क्या रीज़न? देखिए मैं जाती तौर पर इस बात के हक में कि तालिब इल्म को ये तय करना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर चीज़ पढ़ाई जाए। किताब किसी भी को पढ़नी मैं ये मेरी किताब है, मैं ये दावा नहीं करता कि ये 100% ये तो फैसला आपको करना है। किताब पढ़नी है, मेरा काम है लिखने का, और कोई इस तरह की चीज़ है, ये मेरी जाती राय है। मैं अच्छा सर, एक सवाल मेरा था, 1857 के पस मंज़र में एक ओवरव्यू हमेशा ये दिया जाता है कि अंग्रेज़ बहुत जालिम थे और अंग्रेज़ जुल्म व ज़्यादती कर रहे थे, और उनके जुल्म के खिलाफ हिंदू और मुसलमान शाना बशाना अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे। और जो गंगा जमनी तहजीब और ये तमाम जो गंगा जमुना बहती हैं, सियासी गंगा जमुना जो बह रही हैं, इसका जो सरचश्मा है वो 1857 का यही ओवरव्यू नज़र आता है। बट इसकी हकीकत क्या है, इस पर थोड़ी सी रोशनी प्लीज। देखिए
میرا یہ ماننا ہے کہ سر سید نے جب آئین اکبری لکھی تو غالب کے پاس گئے کہ آپ اس پہ تغریز لکھیے. اس نے غالب نے کہا کہ تم نے جو کچھ ہے ٹھیک ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے, میں ابھی کلکتے سے آ رہا ہوں, وہاں میں نے ریل کا انجن دیکھا, وہاں میں نے بھاپ دیکھا, وہاں میں نے بجلی, وہ جو مٹی کے دیے تھے وہ ختم ہو گئے, اب دور قمقمہ کا آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انگریزوں کے لیے تھے. اور اگر تمہیں دیکھنا ہے تو مستقبل کی طرف دیکھو, یہ قبروں پر کب تک ہڈیوں کو بنتے رہو گے, چلتے رہو گے. یہ غالب سر سید کو مشورہ دیا, اور میں یہ مانتا ہوں کہ غالب کا یہ مشورہ جو ہے سر سید نے 1869 میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور سر سید جو ہے سیدھے لندن جاتے ہیں. تو ایکسیپٹ کیا. جہاں بہت سی چیزیں جیسے ٹرین سر سید انگریزوں سے آئی, یہ جو دیے تھے مٹی کے اس کی جگہ یہ جو لائٹیں آئیں وہ انگریزوں سے آئیں. تو بہت سی چیزیں انڈیا میں جو اربنائزیشن ہوا اور ویسٹرنائزیشن ہوا, یہ سب کچھ ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ون سائڈڈ دیکھیں, بہت سی چیزیں. وہ اس وقت موقع نہیں ہے, میں ابھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں, تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہوا کہ کس جگہ پر میں اسی کے اوپر بھی. گورننگ سسٹم ابھی تک انہیں کا ہے. جی ڈھونڈنا پڑے گا. نہیں یہ ایک اچھا ہے, جب ساؤتھ میں رہ گئے یہاں پر ہی تو ایسا کوئی ڈسکشن ہوتا ہی نہیں. تو جو اتنے سامنے تم کروا رہے ہو یہ بہت بڑی ایک انٹروینشن. ہاں ایک چیز اور انہوں نے جو سوال, جب سر سید کا واسطہ جو ہے وہ ان کے خاندان کا مغلیہ دربار سے تھا. سر سید پہلے شخص تھے جنہوں نے مغلیہ دربار سے رشتہ ختم کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے جوڑا. تو معلوم ہے کیا ہوا, ان کے گھر میں سر سید سے پردہ کیا جانے لگا. سر سید نے وہ مصیبتیں جھیلی ہیں. وہ جب اپنے بزرگ جو جن کے فاتحہ سر سید اس کو مانتے تھے وہاں گئے کہ میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں نوکری مل گئی ہے, تو انہوں نے ملنے سے منع کر دیا. ان کی وہ جو مٹھائی لے کے گئے تھے اس کو ریفیوز کر دیا. تو سر سید نے وہ مسائل بھی جھیلے. لیکن سر سید کو معلوم تھا کہ آنا والا وقت جو ہے 50-100 سال تک انگریزوں کی حکومت اس ملک پر رہے گی, اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے مل جل کے رکھا جائے. شکریہ سر. اور کوئی کسی کوئری؟ سر میرا ایک سوال ہے, جیسے آج کل جو کنٹمپریری ٹائم پہ بک نکلتی ہے جیسے سلمان رشدی کی ہو گئی یا کوئی بھی آرٹیکل ہے تسلیمہ نسرین کی طرف سے, ہم لوگ افواہوں کو سنتے ہیں اور ایموشنل جو گریوینس ہے ہم لوگ کے اوپر چلنے لگتا ہے, یا کوئی بھی ہو جنرل طور پہ بات کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ سب سر سید کے ٹائم پہ ہو جاتا ہے, دکھائیے گا میں ایک منٹ. ہاں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ سر آج کل جو کنٹمپریری ٹائم, یس سر ریپیٹ کر رہا ہوں. دیکھیے میں جو ابھی بات کر رہا تھا سر سید کے دور پہ آپ نے جو انگریزوں کی بات کی, ایک منٹ میں نے ابھی غالب کا بتایا. غالب نے سر سید کو مشورہ دیا کہ لندن جا کر دیکھو کہ بے چراغ رات میں اس کی گلی کوچے روشن ہے, ہر بات میں سینکڑوں نئی باتیں پیدا ہیں. جہاں علم و ہنر کے ایسے خزانے موجود ہوں تو پھر آئین اکبری کے بوسیدہ خرمن میں خوشہ چینی کیوں کی جائے؟ یہ مردہ پروری ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ غالب کا سر سید کو مشورہ ہے. اب میرا جو نتیجہ یہی وہ زمانہ تھا جب مشرقی اور مغربی تہذیب کا تصادم
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हुआ, पुरानी कदरें एक एक करके मिटने लगी, नए उलूम व फ़नून की मांग बढ़ गई, नई तालीम फैली, मगरबी तहजीब व सकाफ़त की चमक दमक से मशरक़ की आंखें खुली और बिजली के कुमकुमों के सामने मिट्टी के दिए मांद पड़ गए। इस मगरबी तर्ज मुआशरत ने हिंदुस्तान के समाजी निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर किया, साथ ही अखलाक़ी और मजहबी अफकार व नज़रियात पर भी मगरबी असरात नुमायाँ होने लगे। इन तब्दीलियों का असर हिंदुस्तानी समाज के हर गोशे पर पड़ा। अपने गैर मुस्लिम मुआसरीन जिनका जिक्र सर सैयद ने अपनी तहरीरों और तकरीरों में बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम से किया है, वो सब इन नई तब्दीलियों से मुतासिर नज़र आते हैं। उनके तो बहुत पहले, सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने कहा कि साहब हमें संस्कृत नहीं चाहिए, हमें अंग्रेजी चाहिए। वो भी सर सैयद की मिसाल है, उन्होंने किस तरह जवाब दिया इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल राइटिंग। सर ये मेरा सवाल था, जैसे आजकल जो कंटेम्प्रेरी टाइम पे जो कुछ राइटर है, जैसे सलमान नज़दीकी बुक है, जैसे शैतानी घर से, या कोई आर्टिकल हो गया तस्लीमा नसरीन की तरफ से, हम लोग उसे पढ़ते नहीं हैं, जब जाके एनालाइज नहीं करते क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, इंटेलेक्चुअली कैसे उसको काउंटर करना है। हम लोग का इमोशनल एस्पेक्ट प्रिवेल कर जाता है। अगर ये सब सर सैयद के टाइम में हुआ जाता है तो आपको क्या लगता है सर सैयद कैसे हैंडल करते हैं सब चीज़ को? सर सैयद के टाइम में हुआ भी था और जवाब भी दिया गया था। ये बहुत अच्छी बात है, किताब का जवाब किताब है। बिल्कुल। ये जो आग लगा देते हैं, जुलूस निकालते हैं, हंगामा करते हैं, ये कोई मसले का हल नहीं है। सर सैयद के सामने W. हंटर ने एक किताब लिखी, विलियम योर ने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी। सर सैयद ने लंदन गए, उसने कहा कि मैं बर्बाद हो जाऊं, तबाह हो जाऊं, कम से कम इस किताब का जवाब जो है उसी अंदाज में देना है, और वो दिया। तो हमारा नजरिया भी ये होना चाहिए कि हम बजाय इतनी तेज़ी के साथ रिएक्ट करें, पागल हो जाए, सड़कों पर आ जाए, लाशें बिछ जाए, ये कोई तरीका नहीं है। तो हम महज़िब समाज में रहते हैं, हम तालीम याफ्ता समाज में रहते हैं, और सबसे बेहतर जवाब जो है वो यही है। सर टीचर भी रहे थे बाद में विलियम मुइज़, यहाँ पर टीचर भी रहे थे विलियम मुइज़ बाद में टीचर भी रहे थे। कौन? विलियम मुइज़ नहीं, गवर्नर जनरल शायद यूनाइटेड प्रोविंसेस के रहे, और शायद सर सैयद को जब वहाँ पर नवाजा गया तो उस वक्त चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, यानी वो ये एक्सेप्टेंस भी था, वो खुद भी इम्प्रेस हुए, उसको कन्विंस हुए। और कोई क्वेरी किसी की? हाँ सर, मेरा एक सवाल था, जो आपने कहा था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताया था कि सर सैयद अहमद खां और भी बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने उनका मकबरा बना दिया जी। तो सर अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर वो चाहते थे, तो सर हम समझ नहीं पा रहे कि वो इमेजिनेशन नहीं पहुंच पा रही हमारी कि और क्या चाहते थे सर। इतना तो उन्होंने मतलब किया जितना हम सोच भी नहीं सकते थे, तो और क्या बचा था सर? बहुत कुछ बचा है। तो अनफिनिश्ड एजेंडे पे इसमें तो पूरे 3 दिन में बात कर सकता हूँ। वो जो सर सैयद का अनफिनिश्ड एजेंडा है उस पर बात, ये 3 दिन लगेंगे उसको। मैंने तो कहा कि सर सैयद क्या चाहते हैं। सर अगर 1-2 आप सर मेन कुछ बता देंगे तो सर हम लोगों को वो कहाँ है बहुत बड़ा फ्रेम है। और कोई क्वेरी किसी की? जी अस्सलाम सर। सर सैयद चाहते थे कि लार्ज हटेड टॉलरेंस हो, क्या है आपके पास? सर सैयद चाहते थे फ्री थिंकिंग हो। सर सैयद चाहते थे, उन्होंने बच्चे का वो लगाया है हमीदुल्लाह खान लेक्चर थिएटर, कि जो बच्चे हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए लंदन जाए, कैम्ब्रिज जाए, ऑक्सफोर्ड जाए। कुछ जाता है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने जो बातें की या जो आपने आंसर्स दिए हर एक क्वेरीज के, हर एक क्वेश्चन के, बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से दिए। एक क्वेश्चन ये है कि जब हम 1857 की बात करते हैं, पर्टिकुलरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की उस वक्त, तो इंडिया में जो उस वक्त की तहरीक थी जिसमें 1857 के बाद कॉल्स ऑफ 1857 रिवोल्ट भी पब्लिश हो गए, असबाब बगावत हिंद। तो historians, particularly when we talk about the historiography,
in Indian context or in post 1947 context. تو بہت سارے آرگیو کرتے ہیں کہ جو 1857 کے بعد جو سر سید کا رول رہا that was more quote unquote as a collaborative and less about to fight against the Britishers. And second, when we talk about particularly about the Muslim resurgence, like we see emergence of Muslim League in 1906, and later on we also see how the Muslim League leaders went to province to separate this ideology, quote unquote Muslim resistance. So how you will look or how we will situate historiography as well as the Sir Sayyid's role in collaboration or as a resistance leader? Thank you, sir. मैं ये महसूस करता हूँ कि 1857 को देखकर हर आदमी ने ब्रिटिशर्स ने अपनी तरीके से लिखा, हिंदुओं ने अपने तरीके से, अगर मैं और ज़्यादा बहस करूँ तो उस वक्त एक शख्स था, उसका नाम था राजा शिव प्रसाद बनारस का, जिसको सितारा हिंद कहते थे, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैं दो नाम दे रहा हूँ, सर सैयद के सबसे करीब तरीन दोस्त थे और सर सैयद के साइंटिफिक सोसाइटी के मेंबर थे, आते थे। पहले अगर किसी ने लिखा है हिंदुस्तान में टेक्स्ट बुक को कन्वर्ट किया है तो वो राजा शिव प्रसाद ने किया, सर सैयद लंदन में, और वो रिलेट कर रहे हैं कि ये वो क्या रहा भाई, ये किताब कैसी है, इसको ज़रा भेजो तो सही पढ़े। तो हर तरीके से लोग उस वक्त भी लिख रहे थे, बाद में भी लिख रहे थे। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि जिस आदमी का सगा मामू मरा अंग्रेजों ने मारा, सगा मामूजाद भाई मरा, जिसकी माँ अस्तबल में छुपी हुई और एक हफ्ते बाद उसकी डेथ हुई, जिसका मुरादाबाद का भी घर लूटा गया हो, जिसका दिल्ली का घर भी लूटा गया हो, और सर सैयद ने जो बाद में एविडेंसेस हुई हैं 34,000 का सर सैयद को पर्सेंट लॉस हुआ, तो दोनों घरों को वो अंग्रेजों से कैसे वो करें, वक्त की तहत था, मसला थी, वो सारी हिकमत अमली जो ज़रूरत के हिसाब से थी वो सर सैयद ने अपनाई बहुत ज़्यादा। तो ये सर सैयद के यहाँ मिलती है। ये बात भी है कि सर सैयद के यहाँ कम्युनलिज्म नहीं थी, वो हिंदुओं के बराबर है। मैं ये किताब है सर सैयद उनके मुआसरी में, मैंने देखा कि हिंदुस्तान में एक शख्स पैदा हुआ, उसका नाम था दयानंद सरस्वती, जिसने आर्य समाज की तहरीक शुरू की। मालूम है वो क्या कहता है सर सैयद के लिए? महाशय। महाशय का मतलब होता है हिंदी में काबिल ताज़ीम। अब वो सर सैयद से मिलने अलीगढ़ आता है, जब वो बनारस जाता है दयानंद सरस्वती, सर सैयद को पता चलता है, उसको पुलिस जो है मारती है, पीटती है और उसको स्टेशन में बैठा देती है ट्रेन में, क्योंकि वहाँ सनातन धर्म के लोग थे, राजा भी और लोग भी और दूसरे लोग भी मूर्ति पूजन वाले थे, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ तहरीक चल रहे। सर सैयद ने उसको अपने घर बुलाया और जितने हिंदू गदर काटे हुए थे सबको बुलाया। उसने कहा कि आज मेरे घर पे जो है वेदों का पाठ होगा, आपके मजहब में क्या, आप जो तहरीक चला रहे हो आर्य समाज की, उसमें क्या है? उनका क्या, हम खुदा को मानते जो इस्लाम मानता है, यानी आर्य समाज का उसका ठीक है, और नहीं मानते। सर सैयद ने अपने घर बुला के सबको और उन लोगों को बुलाया।